اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ۔ جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے، کیا ہو آپ کا فیصلہ؟ بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن۔ ووٹ کرے گا انڈیا۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی اردو کشمیر۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ برفباری کے بعد کشمیر میں زندگی آ رہی ہے معمول پر، کام گرا فروشی کا بازار گرم، مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش۔ موسم ٹھیک رہنے کی صورت میں جموں سری نگر قومی شاہراہ پر آج گاڑیوں کو جموں سے سری نگر جانے کی ہوگی اجازت۔ اور ایل او سی ٹریڈ معاملہ، پاکستان میں گرفتار ڈرائیوروں کے رشتہ دار پریشان، کہا انہیں بلا جواز کیا گیا ہے گرفتار۔ اور خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر کے نوبرا، ترتک اور سامبا سے تعلق رکھنے والے وفود نے کل جموں میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی۔ ان وفود نے وزیر اعلیٰ کے سامنے کئی مطالبات رکھے۔ ان وفود نے مختلف علاقوں کے متوازن ترقیاتی اسکیموں کے لیے وزیر اعلیٰ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ بھاری برفباری کے بعد وادی کشمیر میں زندگی آہستہ آہستہ معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حالانکہ جنوبی کشمیر میں ابھی بھی کافی پریشانیاں ہیں، لیکن سری نگر اور شمالی کشمیر میں حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ سری نگر میں کل بازاروں میں رونق لوٹی اور ٹریفک سڑکوں پر رواں دواں رہا۔ ادھر سول سیکریٹریٹ کے انچارج وزیر ڈاکٹر منوہر لال نے کہا کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے شام تک کھلنے کی امید ہے۔ ڈاکٹر منوہر لال کے مطابق جنوبی کشمیر کو چھوڑ کر باقی تمام علاقوں میں بجلی کی سپلائی بحال کی جا رہی ہے۔ سری نگر میں کافی حد تک ریسٹور ہو رہی ہے، پھر دوبارہ انٹربیشن اس میں کہیں 33 کے بی اور 11 کے بی میں آ رہی ہے۔ فلیکچویشن ہے مگر ریسٹوریشن کافی حد تک انہوں نے کر لی ہے۔ ایسے ساؤتھ کشمیر میں پاور سپلائی انٹرپٹڈ ہے، کہیں کہیں واٹر سپلائی کا بھی پائپیز وغیرہ ڈیمیج ہوئی ہے سپلائی لائن، اور راشن، ایل پی جی گیس اور کیروسین آئل، پیٹرول وغیرہ کی کہیں بھی ابھی تک کہیں قلت کا ہمیں رپورٹ نہیں آئی ہے۔ کچھ تھوڑے بہت کچے مکان کہیں گرے ہیں، ان لوگوں کو سیفر زون میں ہم نے شفٹ بھی کر دیا ہے۔ برفباری سے جموں سری نگر قومی شاہراہ بند ہونے کے ساتھ کشمیر میں گراں بازاری شروع ہو گئی ہے۔ کئی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ دکاندار حضرات اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر مصنوعی قلت پیدا کر رہے ہیں، اس کے بہانے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ سری نگر میں خاص طور سے سبزی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ صحیح درجہ ولو کلو اوتان 10-15 رۄپیہِ، آج 50 رۄپیہِ، گنڈٕ کلو 50 رۄپیہِ چھِ آز، مٹر 20 رۄپیہِ 30 رۄپیہِ کلو، کیا کرو درجر صحیح وٕچھان شیٖن پیوٚو تہٕ بس
चारान लाकम हालांकि स्टॉक छ आसान यम चारान लागा गरीब छु गसान मार इत पट क्या आज क्या हाल है आज हाला अगर रात 20 रुपये मटर किलो आज 30 आज 35 जनरली पेवान फर्क और तु गसान बंद मगर तम करान तो शार्टेज हालांकि तूत ग शार्टेज कर क्या गरीब छु वारिया मेरे ख्याल में करीब 25-30% ज्यादा दे रहे हैं इस वक्त सब्जियां सब है, जैसे सब्जी गोभी शोभी वगैरह वगैरह ये सब जरा महंगाई दे रहे हैं इस वक्त। हालिया बर्फबारी के बाद जहां वादी भर में आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई, वहीं अनंतनाग के देही इलाकों और दीगर कस्बों के राब्ता सड़क से अभी तक बर्फ नहीं हटाई गई, जिसकी वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन सड़कों का राब्ता बहाल करने के लिए जल्द से जल्द बर्फ हटाई जाए ताकि आम जिंदगी पटरी पर लौट आए। उधर इंतजामिया का कहना है कि जिले की तमाम अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई है और बकिया इलाकों का राब्ता जुमे के रोज तक बहाल होने की तवक्को है, जबकि मुतालिका महकमों को हिदायत दी गई है कि वो अपने तमाम वसाइल बरोकार लाएं और लोगों की मुश्किलात का इजाला करें। अनंतनाग के बेशतर इलाकों में लोगों को पीने के पानी के हवाले से काफी मुश्किलात दरपेश है। हिवैन कॉलोनी, अशाजीपुरा, दांतर और इससे मुत्तसिल इलाकों में लोगों की शिकायत है कि इन्हें गुज़िश्ता कई महीनों से पीने के पानी की शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है और बर्फ के दिनों में इन मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। लोगों का कहना है कि इन्होंने कई बार मुतल्लका महकमे और जिला इंतजामिया को इस बारे में आगाह किया, लेकिन ताहाल इनकी मुश्किलात का कोई इजाला नहीं हो सका। लोगों ने फिर एक बार हुक्काम से अपील की है कि उन इलाकों में पीने के पानी की किल्लत को दूर करे। इसे 1.5 महीने से हम लोगों के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है हमारी बात। पानी है ही नहीं, आप देख सकते हैं अंदर, आप मेले में जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि औरतें किस तरह इधर खड्डों में पानी वो गंदा गंदा पानी लाते हैं और हम वही पीते हैं। तो हमने बार बार उनको कह दिया था कि मेहरबानी करके हमारे इस लेन नंबर फर्स्ट जो हिमन कॉलोनी की लेन नंबर फर्स्ट है उसके लिए पानी का थोड़ा इंतजाम कर लो। गो आज आखिरत आब आसना सही हमशेर सन अमिस गई कल पे कल पे नेर आई नड़ फटित गए आबस नलकन आज रेत हेत आब कहें सन हुकूमत तुई। जिला कुलगाम में हुई बर्फबारी के बाद आम जिंदगी काफी मुतासिर हो गई है। जिले में अगरचे हंगामी बुनियादों पर अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने के काम में पहल की गई, ताहम पूरा जिला इस वक्त गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ है। कस्बा कुलगाम में देर गए तक बिजली का कोई अता पता नहीं था, जबकि दूर दराज इलाकों में लोगों की हालत इससे भी नागुफ्तबे है। इससे तब से आज तक बिजली नहीं है, पहले भी नहीं होती थी, कम से कम होती थी, लेकिन आज बिल्कुल भी गायब है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, उधर इधर कोई इसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बर्फ तो हटाई गई है टाउन में, पर विलेज की अभी पता नहीं है कि क्या हाल है वहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी 2-3 दिनों से रेस्टोर नहीं की है अभी, तो होपफुली कि वो भी रेस्टोर हो जाएगी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है, बाकी शॉप्स है, तो उनको तो नुकसान तो होता ही है, बिजली पे यहाँ पे वो ठप हो रहा है, और सर्दी का मौसम है तो ठंड की भी प्रॉब्लम हो रही है। हालिया बर्फबारी के बाद कल दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही, ताहम दोपहर को काजीगुंड और बानेहाल में दरमांदा सैकड़ों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई। हुक्काम का कहना है कि इन्होंने कौमी शाहराह पर सिर्फ दरमांदा गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाजत दी ताकि शाहराह को बाज़ाब्ता तौर पर नए ट्रैफिक के नकलो हमल को बहाल किया जाए। उधर ट्रैफिक हुक्काम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो कौमी शाहराह पर सफर पर जाने से पहले जम्मू और श्रीनगर में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राब्ता करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। दरियासर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की एक इत्तला के मुताबिक जुमे के रोज मौसम ठीक रहने की सूरत में गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत रहेगी। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि अगले हफ्ते मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। ईटीवी के साथ बात करते हुए महकमा मौसमियात श्रीनगर सेंटर के इंचार्ज सोनम लोटस ने कहा कि दिन के दर्जे हरारत में इजाफा होगा, लेकिन सुबह और शाम ज्यादा सर्दी महसूस की जा सकती है।
عموماً ویدر جو ہے خشک رہنے کا امکان ہے. ان دنوں میں خاص کر کے وادی کشمیر میں دن کا تاپمان میں آہستہ آہستہ جو ہے بڑھوتے آ جائیں گے. منیمم ٹیمپریچر فال ہو جائے گا, تو جس کی وجہ سے سردی میں خاص کر کے صبح شام اور رات کو اور اضافہ ہوگا, کم نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں. تو باقی دن میں ابھی بیچ بیچ میں سورج بھی آف کورس نکالے گا. باقی عموماً تو کلاؤڈی ہی رہے گا, لیکن برف باری نہیں ہوگا. وزیر جنگلات و ماحولیات میاں الطاف احمد نے راجوری کے کالا کوٹ علاقے کا دورہ کیا اور فارسٹ گیسٹ ہاؤس کا افتتاح کرنے کے ساتھ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے ایک عوامی ریلی سے خطاب کیا جس میں زیادہ تر گجر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد تھے. انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ حکومت گجر اور بکروال طبقے کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. میں اگر یہ کہوں, اور یہ سچ بھی ہے, کہ گاڈ گفٹڈ, جس کو انگریزی میں گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں, اردو میں خداداد کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کسی کو کہ وہ اتنا اچھا نقشہ اپنے پیر کا بھی جہاں کھینچتا ہے وہاں گاڈ کا بھی کھینچتا ہے, گرداور کا بھی کھینچتا ہے, پٹواری کا بھی کھینچتا ہے, لیڈر کا بھی کھینچتا ہے. اور یہ بھی نذیر صاحب کا ہی کمال تھا کہ میں سنتا تھا جب شیخ صاحب آئے تو انہوں نے وہ جو ابھی انہوں نے شعر سنائے وہ سنائے, اور اس کے بعد یہاں کانگریس کا جلسہ ہوا تو ان سے کاٹ کے اندرا گاندھی کر کے تو بالکل اسی انداز سے انہوں نے ان کو یہاں سے خوش کر کے بھیج دیا. ناظرین, ٹی وی اردو کشمیر کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی, پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا. جہاں لکی نے چاک مٹی, پپو نے پی او پی, وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت. وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ. سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا, دیواریں بول اٹھیں گی. مجھے بواسیر ہے, خون بھی آتا ہے, لیکن آپریشن سے ڈرتا ہوں. زید رشی کا ارش کلپلو کیپسول اور ٹیوب, 3 دن 3 ہی خوراک. 01125532553. اچھا, دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972, ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ای ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی اردو کشمیر. ایل او سی ٹریڈ کے معاملے میں پاک مقبوضہ کشمیر میں گرفتار کیے گئے ہندوستانی ڈرائیوروں کے رشتہ دار کافی پریشان ہیں. وادی میں ڈرائیوروں کی مصیبت زدہ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے عزیزوں سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ اگر منشیات کے سلسلے میں پاکستانی ڈرائیوروں کو یہاں گرفتار کیا گیا ہے تو ان کے عزیزوں کو پاک مقبوضہ کشمیر میں کیوں گرفتار کیا گیا جبکہ وہ بے قصور ہیں. تو ہم بہت گھر میں پریشان ہیں, ماں بہت پریشان ہے, بہن بھائی بہت پریشان ہے. گھر کو چلانے والا میرا وہی ایک بیٹا تھا. تو اب سرکار نے ابھی تک کچھ سرکار نے ہمارے بارے کچھ نہیں سوچا, ایڈمنسٹریشن نے کچھ نہیں کیا, پوچھنے تک نہیں آئے ہمارے گھر میں کہ آپ کے بیٹے پا رہے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا کام کیسے چل رہے ہیں. تو ہم ڈپینڈ ہیں اسی بیٹے پر. ہم بہت پریشان ہیں. میری شادی کو ابھی 1.5 مہینہ ہوا ہے. میرا پتی یہاں سے پاکستان گیا ہے کہ ایک نے غلطی کی ہے, سبھی لوگوں کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کیسا قانون ہے ان لوگوں نے؟ یہ کون سا رول ہے؟ ایک غلطی کرے سب کو سزا ملے. سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہائیڈرولک آفس ہندواڑہ کے سامنے کل محکمہ پی ایچ ای کی مختلف اسکیموں میں کام کر رہے سینکڑوں کیجول لیبرز نے محکمے کے خلاف احتجاج کیا. یہ لوگ الزام عائد کر رہے تھے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ لوگ تنخواہ سے محروم ہیں اور فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں. ملازمین نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کو مستقل کرنے کے احکامات صادر نہیں کیے گئے تو وہ احتجاج میں شدت لائیں گے.
आ रहे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको वेजेस नहीं दी गई है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि इनके रुकी पड़ी वेजेस को फिलफोर वागुजार किया जाए और उनकी जो रुकी पड़ी इन्फॉर्मेशन है इसको फिलफोर सिविल सेक्रेटरीट भेजा जाए। अगर इनकी वेजेस को वागुजार नहीं किया गया और इनके इन्फॉर्मेशन को वक्त पे सबमिट नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में एक सख्तगीर एहतजाज देखने को मिलेगा। मैंने लेटर निकाली है कि आज 3 जनवरी को यहाँ पे आप लोगों की परेड है, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी यहाँ पे इन लोगों की। तो हम मुख्तलिफ स्कीमों में काम कर रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे वो क्यों नहीं आए हैं। हम सवेरे 7 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम वही चाहते हैं कि हमारी जो यहाँ पे परेड है वो होनी चाहिए। हम काम कर रहे हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एहतजाज किया है। लद्दाख जिले में लद्दाख कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से पंचायत कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में 250 पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद लद्दाख जिले में रिश्वतखोरी के बढ़ते रुझान पर काबू पाना था। लद्दाख पर खेतन जिक्सटेन योम सिना ngatang sama turgu zinoma mitrangpo sada side Himalayan khuk sina ngatang sama sna seyotenok tena mana corruption dulamet kyak zete jiksten gomdona te izupo thonang jiyotenol in kyang tene I department khachi ginanga mana zerbos met pa 2% 5% jik fix cho sena corruption bo khule am dultenol te bi khilaba। लद्दाख में मुस्लिम खवातीन जिंदगी के हर शोबे में आगे आ रही हैं। 2012-13 में लद्दाख की पहली मुस्लिम लड़की अवैसा इकबाल सिविल सर्विसेज में कामयाब हुई। अब लद्दाख की पहली मुस्लिम लड़की हाजरा बानो ने सहाफत के मैदान में कदम रखा है ताकि वो समाज की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। वाज़ेह है कि हाजरा बानो नेट भी क्वालिफाई कर चुकी है। बचपन से नहीं कहूंगी, जब तक करियर काउंसलिंग का उतना पता नहीं था तो ऑब्वियसली जर्नलिज्म के बारे में सुना भी नहीं था। तो जब कॉलेज में गई थी तो उस टाइम पता चला, क्योंकि राइटिंग में मुझे पहले से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो राइटिंग के लिए जो मुझे लगा उससे सबसे बेस्ट बुक राइटिंग के बाद जो सबसे बेस्ट आता है तो जर्नलिज्म है, क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। तो एज अ रिपोर्टर जिन इश्यूज को मैं लेकर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूंगी वो जर्नलिज्म से बेटर और किसी फील्ड में हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या पाया, क्या आप कौम के लिए कुछ खिदमत कर सकती हैं? जितना लोगों से रिस्पांस मिला है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ज्यादा नहीं तो 100 में से शायद 2% मैं अपनी सोसाइटी के लिए शायद ही कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। किश्तवाड़ के इलाके शिरजी में लोग 20 दिनों से बिजली की अदम दस्तयाबी से परेशान है। इलाके के लोगों का इल्जाम है कि महकमा जानबूझकर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के नाम पर लोगों को बिजली सप्लाई से महरूम रख रहा है। 14 दिन पहले से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, आज तक उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। जब हम दफ्तर में गए तो सैन साहब वहाँ कहते हैं कि नहीं ये हमारे पास हर जगह पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, तो हमें यहाँ ट्रांसफार्मर तैयार नहीं होते हैं। अफसोस है कि जब डोडा में हमारा डिवीजन था तब भी हमारे 20-25 दिन 1 महीने के बाद ट्रांसफार्मर चेंज होता था, आज भी वही हाल है। उसके बाद अलावा देखो तो सारी तारें जितनी भी हैं इनकी तो वो सब दरख्तों के साथ बांधी हुई हैं, जिससे उसके ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड पड़ता है। ट्रांसफार्मर जब जल जाता है तो लोग ये बाद में कहते हैं नहीं ये लोग बॉयलर लगाते हैं, हीटर लगाते हैं, जबकि ये इनका खुद का फॉल्ट है। जिला अस्पताल डोडा में जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी और मुकामी रजाकार अंजुमनों की तरफ से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कई लोगों ने अपने खून का अतिया पेश किया। इस कैंप का इफ्तिताह सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल डोडा अब्दुल वाहिद ने किया। की कुछ एनजीओज की तरफ से है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जम्मू कश्मीर एड कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से है। तो हम यही पैगाम देते हैं कि खून देना जो है इससे किसी की जान बच सकती है, और खून देने से जो एक आम वहम है लोगों में कि कमजोरी हो जाती है या ऐसी कोई बात नहीं है। हम हर एक से यही गुजारिश करेंगे कि वो आए सामने खून दें ताकि किसी की कीमती जान को बचाया जा सके। मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस के 118वीं सालगिरह के मौके पर जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन ने सुभाष चंद्र बोस को खराज अकीदत पेश किया, उनकी कुर्बानियों को याद किया। कई साल स्ट्रगल की और जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और अपने साथियों के साथ इस देश को आज़ाद करवाया। 90 साल लगे और आज
हमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि लोगों के दिलों से नेताजी को याद करने वाले बहुत कम लोग जो कि हर साल उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और आने वाली जनरेशन को मैं तो ये कहूँगा कि ये काम नौजवानों का है, नौजवानों को करना चाहिए। नई टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। एनएसयूआई ने मुतालबा किया है कि रियासत में हक़ तालीम एक्ट को लागू किया जाए। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी फिरोज खान ने कहा कि रियासती हुकूमत हक़ तालीम एक्ट को रियासत में लागू करे। इन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से ज्यादातर फंड मरकज ने वागुजार कर दिया है। और इसको पास एजुकेशन जो जिसमें के लिए एनएसयूए ने पहले भी रोड पे आई है, सिग्नेचर कैंपेन किए है और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कैंपेन भी किया है, जो कुछ देर के लिए रुक गया था। बट हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली ऑनरेबल सीएम इसको टेक ओवर करे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट जम्मू कश्मीर में नहीं है, आर्टिकल 21A। और हम चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में हो, जिससे जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 25% रिजर्वेशन गरीब बच्चों को मिलेगी। उसके अलावा क्योंकि ये 90% सेंटर स्पॉन्सर्ड है, 10% स्टेट गवर्नमेंट को देता है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर ये पास नहीं हुआ तो हम दोबारा सिग्नेचर कैंपेन और फिर रोड्स पे आएंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट नितिन बख्शी पहले अखिल भारतीय गुज्जर महासभा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मनसूबा बंदी कमीशन की सिफारिशात को लागू करे और रियासत में ट्राइबल सब प्लान के फंड वागुजार करे। जम्मू में ईटीवी से बात करते हुए इन्होंने जम्मू प्लान के फंड वागुजार करने का भी मुतालबा किया। चाहते हैं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले 4 साल से, मैं तो ये कहता हूं 1991 से हिदायत है जम्मू कश्मीर सरकार को, लेकिन बिलखुसूस 4 साल से बड़ी पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर सरकार को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने हिदायत दी हुई है कि आपको ट्राइबल सब प्लान जो है एनुअल प्लान के बीच में आबादी के हिसाब से मुस्तकिस करके जो है आपको रकूमात फराहम करनी है आवाम को। तो हम ये गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार से और अपोजिशन से भी गुजारिश करते हैं कि जो है आप अपने इलाके ट्राइबल इलाके की हालत देख लें, क्योंकि 1991 के बाद एसटी मिलने के बाद जो ट्राइबल लोगों की हालात बहुत बेहतर होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा, जेल वार्डन जो उनकी लिस्ट क्यों? जनता दल यूनाइटेड के सदर गुलाम कादिर वानी ने रियासत में बढ़ती बदउनवानी, महंगाई और बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए वानी ने कहा कि रियासती हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। इस मौके पर इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ताल्लुक से सुशील कुमार शिंदे के तबसरे की मजम्मत की। पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने कल जम्मू में गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया। पार्टी कारकुनों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर की तश्कील नौ की जाए और तीनों खित्तों के लोगों को इंसाफ मिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम तुम्हारे साथ हैं। टीम सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम जिंदाबाद, जम्मू प्रवासन टीम पार्टी जिंदाबाद, भीम सिंह जी आगे बढ़ो, हमारे
पुनर्गठन ही एक रास्ता है। जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान एक ही है, पुनर्गठन, ताकि 3 असेंबली कायम हो जम्मू में, कश्मीर घाटी में और लद्दाख में, ताकि तीनों खित्तों के लोग जो हैं वो अपनी अपनी असेंबली हो, अपना डिलिमिटेशन कमीशन हो और अपना अपना फाइनेंस हो। ये बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर की इंटरनल समस्या के समाधान के लिए। काबिलियत किसी चीज की मोहताज नहीं और मुश्किलात से वो मुतासिर नहीं होती। ये बात साबित कर दी दर्जीपुरा कुपवाड़ा के गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले आदिल हुसैन पीर ने। पेश कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान की एक रिपोर्ट। काबिलियत किसी चीज की मोहताज नहीं होती, ये बात साबित कर दी है दर्जीपुरा कुपवाड़ा के गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले आदिल हुसैन पीर ने। आदिल ने 12वीं जमात के इम्तिहान में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 490 नंबरात हासिल करके रियासती सतह पर पोजीशन हासिल की है। मैंने दिन रात मेहनत की, दिन को रात बनाया, रात को दिन बनाया और अपनी माँ की हालत देखकर मैंने ज्यादा मेहनत शुरू कर दी और इसलिए मैंने आज ये पोजीशन हासिल की। बचपन से माँ के साए में रहा हूँ, शफकत पितरे से महरूम हुआ हूँ। आदिल घरेलू माली हालत को देखते हुए अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है और अपनी तालीम को जारी रखना उसे नामुमकिन दिखाई दे रहा है, मगर आदिल की माँ को अल्लाह पर पूरा भरोसा है। आगे मैं भी किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए कोचिंग करना चाहता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस न होने की वजह से मैं आज 2 महीने में घर में रहा हूँ। मैं भी चाहता था मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बनूं, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस से मुझे घर में ही बिठा दिया है। डर महसूस कर रहा हूँ कि मेरी 12 साल की मेहनत अब रायगान मत होगी। बस सठा कोशिश पढ़नस खतर बार बार बस नमाज वक्त वो जबरदस्त कर कोशिश नमाज पढ़, अल्लाह ताला दी रोब दी खुशी अत मज बस वरी मे दक लोगमुत पे ये मान लगभग 20 वरी अमिस पे छमा कर इंशाल्लाह रबन दिस आज खुशी खुशनवन पे खुश गुजरान पे शुक्र अल्लाह ताला सुन बार बार वन रब्बुल आलमीन कुल कायनात खुशी तिंदी पास मीनिस बचस रबन खज मेहनत वुट। उम्मीद की जा सकती है कि खबर नश्र होने के बाद आदिल के लिए कोई न कोई मददगार हाथ जरूर सामने आएगा, जिससे कि आदिल को अपने मुस्तकबिल के तारीख होने के खदशे से निजात मिलेगी। ईटीवी न्यूज कुपवाड़ा। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए खास बात हुरैरा के साथ। आदाब। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। का खैर, जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं न कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया।